Hi kids, I hope you all are doing good, studying well. Now today I am going to teach you the 12th chapter of your EVS book House and Neighborhood. In this chapter we are going to cover the following topics like types of houses, है ना, and the second is types of houses and cleanliness of house, decoration of house. Okay, there is a direction also in this chapter, maps, sketches. Okay, all these things we are going to cover. Okay, now अपने neighborhood, we are also going to cover the neighborhood surrounding our house. Okay, this is called neighborhood. Now let's see, there is a small warm up here. You all have seen this type of houses. मगर हमारे आसपास क्या है? Usually found in your neighborhood. हमारे घर के आसपास कैसे घर हैं? तो concrete house, पक्का house. Okay. Now early men did not live in the house. पहले के लोग घर में नहीं रहते थे. They live in where? Caves, under the tree. Okay, he lived in a caves and under the tree. Then he gradually learned to make house. फिर वो धीरे धीरे घर बनाना सीख गए. ठीक है? Now you can see there are type of houses. कच्चा house, पक्का house. See, कच्चा house is made of what? There is mud, there is straw. ठीक है? There is beautiful painting. Okay, and in पक्का house, what we have? Concrete house. See, this is our wall, gate, okay, फर्श, okay, now flooring अच्छा है, there is roof, ठीक है. Now this is called पक्का house. Okay, types of houses. Now we are going to learn about the different kinds of houses. Houses made of bamboo, mud and straw are called hut. वो घर जो bamboo, straw और मट्टी से बनते हैं, मड से बनते हैं, they are known as hut. Okay, they are known as कच्चा house. Okay, huts are also called kacha house and they can be easily torn and blown away by storm and rain. ये easily टूट फूट जाते हैं, उड़ जाते हैं इनकी छतें जब हमारे यहाँ बहुत storm, रेन या स्टॉर्म बहुत हैवी आता है तो. और जो हमारे पक्के हाउस होते हैं इन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, चाहे तेज़ बारिश आए, चाहे खूब तेज स्टॉर्म आए, क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ विद concrete things. Okay, now pakka house are made of cement, brick, iron, steel and many other things. Strong winds and rain put no effect on them. आपकी strong wind और rain इन पे कोई असर नहीं छोड़ती. ठीक है? Now there are many kind of pakka houses like bungalow, flat and apartment. हमारे पास यहाँ कई तरह के पक्के houses होते हैं, जैसे हमारे बंगलो हो गए, फ्लैट हो गए, अपार्टमेंट्स हो गए. ठीक है? अपार्टमेंट क्या होता है? देयर इज अ वन बिल्डिंग. ओके, देयर इज वन बिल्डिंग एंड इन इट देयर आर सो मेनी फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स. ओके, नाउ वी हैव a few pictures here. Okay, see, we have double story building. Okay, bungalow, skyscraper. See, there is a one single building. Okay, and in this single building there are many apartments. Okay, see, there is a डबल स्टोरी बिल्डिंग. ये आपका एक बंगला है. इट हैज़ इनफ स्पेस, अंदर से भी बहुत बड़ा है और इसके चारों तरफ भी बहुत स्पेस है, बहुत जगह है. ओके, नाउ पीपल लिविंग इन सिटीज़ मेक मैनी टाइप ऑफ हाउसेज सच एज विलास, बंगलोज, मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट. जो लोग हमारे सिटीज़ में रहते हैं वो कई तरह के घर बनाते हैं, जहाँ देखे भी होते हैं, रहते भी हैं. हाउसेज लाइक विलास, उनके विलास होते हैं, बंगलोज होते हैं, उनकी मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट्स होते हैं. ठीक है? नाउ अ डेज स्काईस्क्रैपर्स आर कॉमनली सीन इन टाउन एंड सिटीज़. आजकल के दिनों में ज़्यादातर हमें क्या देखने को मिलता है? स्काईस्क्रैपर. ओके, there are very high multi-story building which appears to touch the sky. ये जो बिल्डिंग होती है हमारी, it seems like what, कि ये सीधे आसमान में ही घुसी जा रही है और ये खूब ऊंची लंबी होती है और इनमें काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स होते हैं. ठीक है? नाउ सम अदर काइंड ऑफ हाउसेज. अब हमारे पास कुछ और तरीके के भी घर होते हैं. नाउ स्टिल्ट हाउस. स्टिल्ट हाउस किस पे बना होता है? बैम्बू स्टिक्स पे, हैवी बैम्बू स्टिक्स पे. ठीक है? सी, ये आपको पूरा बैलेंस कर रहा है, आपको पूरा घर का पूरा वेट ले रहा है. तो ये क्या है? स्टिल्ट हाउस है ये. ओम्स हाउस इन असम
इज हेल्ड अप बाय वुडन स्टिक। जो ओम का घर है वो असम में है और वो किसके ऊपर टिका हुआ है, वो बैम्बू स्टिक्स के ऊपर टिका हुआ है, वुडन स्टिक्स के ऊपर टिका हुआ है। दिस इज अ हैवी रेनफॉल एरिया। असम का ये एरिया कैसा है, बहुत हैवी रेनफॉल होती है यहाँ पे। एंड स्टिल्ट प्रिवेंट द हाउस फ्रॉम गेटिंग फ्लडेड। और जो स्टिल्ट हाउस होते हैं ये अपने को बाढ़ से बचाते हैं, ठीक है। नाउ एंड ऑल्सो फ्रॉम इंसेक्ट, स्नेक्स एंड अदर एनिमल्स। और जो बरसात में जो बाकी हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, स्नेक्स होते हैं, उनसे भी बचाते हैं, ठीक है। नाउ ही यूजेज अ लेडर टू गो अप एंड डाउन फ्रॉम द हाउस। घर में आना जाना करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए दे यूज लेडर। और ये लेडर कैसी होती है, डिटैचेबल होती है। इनको हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, फोल्ड करके रात में ऊपर रख सकते हैं और फिर मॉर्निंग में इसको खोल के नीचे सेट कर सकते हैं। तो ही यूजेज अ लेडर टू गो अप एंड डाउन फ्रॉम द हाउस। एट नाइट दे पुल द लेडर अप। रात में ये अपनी लेडर ऊपर रख लेते हैं, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड स्टिल्ट हाउस, ओके। जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है वहाँ पे ये घर पाए जाते हैं। नाउ कॉटेज। कॉटेज हैव कैसा रूफ होता है, दे ऑल हैव लाइक स्लैंटिंग रूफ, ओके। दिस टाइप ऑफ हाउसेज made where we found these type of houses in at hilly area or at शिमला और कश्मीर, ठीक है। इनकी कैसी होती हैं, इनकी जो छतें होती हैं, रूफ होती है, ये बहुत स्लोपिंग होती हैं, ठीक है। ऋतु लिव्स इन अ वार्म कॉटेज इन शिमला। ऋतु जो है वो वार्म कॉटेज शिमला में रहती है। दिस इज अ कोल्ड एरिया वेयर इट स्नोज इन विंटर। ये ठंडा एरिया है, कोल्ड एरिया है और यहाँ पे विंटर्स में क्या होती है, स्नो होती है, बर्फ गिरती है। द स्नो स्लाइड्स ऑफ द स्लोपिंग रूफ। जो स्नो है वो आपकी स्लाइड करती है, फिसल के नीचे आ जाती है, क्योंकि उसकी छत का शेप कैसा होता है, स्लोप होता है, ओके। और सब सारी बर्फ नीचे आ जाती है। थिक स्टोन वॉल कीप द हाउस वार्म। जो हमारे जो वॉल है वो बहुत थिक स्टोन की होती है, जिससे हमारा घर अंदर से बहुत कोजी, बहुत वार्म रहता है। सी देयर इज वन मोर हाउस, यू कैन सी हाउस बोट। दिस इज अ हाउस ऑन बोट, ओके। ये घर किस पे है, बोट पे। और ये घर कैसा है, मूवेबल है, ठीक है। अक्षत ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन कश्मीर। जो अक्षत के ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कश्मीर में रहते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ अ हाउस बिल्ट ऑन बोट। और ये जो घर है उनका बोट पे बना हुआ है। इट फ्लोट्स ऑन वाटर। पानी पे ये घर तैरता है, ठीक है। नाउ पीपल ऑफ केरला ऑल्सो लिव इन हाउस बोट। जो लोग केरला के हैं, जो केरला में रहते हैं, उनके भी क्या होता है, खूब बैक वाटर, सीज और वाटर बैक वाटर्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, हाउस बोट बनाते हैं और उसमें रहते हैं। दे लिव इन, ओके। टर्न द पेज। See, there is a igloo, okay. स्कीमोज जो होते हैं वो इग्लू में रहते हैं। स्कीमोज या हो गए यहाँ पे, या इन्यूइट हो गए, ठीक है। एलिस इज एन इन्यूइट। एलिस कौन है, इन्यूइट। ये क्या है, इंडिजिनस पीपल होते हैं जो लाइक जब अपने 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 नेटिव प्लेस में ये शुरू से रह रहे होते हैं, लाइक इन द अर्लीस्ट टाइम, ठीक है। और ये जो लोग होते हैं, ये एक तरह की प्रजाति है जो यहाँ रहती है शुरुआत से, बर्फीले एरिए में, ठीक है। नो एलिस इज एन इन्यूइट। ये एक इन्यूइट है, ओके। शी लिव्स इन एन इग्लू इन द आर्टिक रीजन ऑफ कनाडा। कनाडा के आर्टिक रीजन में, सबसे ऊपर वाले रीजन में ये रहती है। यहाँ पे क्या होते हैं, लेयर ऑफ आइस, खूब ठंडा रीजन है। और यहाँ पे क्या, लॉन्ग विंटर्स होते हैं और शॉर्ट कोल्ड समर्स होते हैं। समर्स में भी यहाँ पे अगर धूप भी आए ना तो आपको गर्मी नहीं लगती, और बहुत छोटे समर्स होते हैं। और सर्दियाँ बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, काफ़ी मंथ्स तक रहती हैं। इट इज़ अ वेरी कोल्ड प्लेस। ये बहुत ठंडा एरिया इलाका होता है। कवर्ड विथ स्नो ऑल ओवर द ईयर्स। पूरे साल यहाँ स्नो ही स्नो रहती है, पूरे साल, ओके। एंड हेयर हाउस इज मेड ऑफ आइस ब्रिक्स। यहाँ पे जो घर होते हैं वो आइस ब्रिक्स से बने होते हैं। द स्नो ट्रैप द हीट एंड कीप द हाउस वार्म। जो स्नो है वो हीट को ट्रैप कर लेती है और अंदर से घर को कोजी और वार्म रखती है, ठीक है। नाउ अ क्लीन हाउस। नाउ वी विल गोइंग टू लर्न हाउ टू मेक आवर हाउस क्लीन। कैसे हम अपने घर को साफ रख सकते हैं, हाउ टू मेंटेन द क्लीनलीनेस ऑफ हाउस। सी, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच मेंबर ऑफ द हाउस टू हेल्प इन कीपिंग द हाउस क्लीन एंड टाइडी। वी कैन डू सो बाय फॉलोइंग दिस पॉइंट्स। ये घर के हर मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने घर को नीट, टाइडी और क्लीन रखे। और यहाँ पे कुछ हमको सेफ्टी
रूल्स और मेजर्स दिए गए हैं, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसको हम फॉलो करके अपने घर को नीट क्लीन रख सकते हैं. सो मेक श्योर देयर आर लॉट्स ऑफ डोर एंड विंडो टू अलाउ फ्रेश एयर एंड सनलाइट टू कम इन. हमको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे घर में प्रॉपर एयर का वेंटिलेशन हो, सनलाइट आए, जिससे जो सनलाइट की जो वार्मथ है उससे हमारे घर के जर्म्स और बैक्टीरिया मर जाएं, और हमारे घर में प्रॉपर क्या विंडो और डोर से हवा का आना जाना हो, फ्रेश एयर आए और फ्रेश एयर का आना जाना, वेंटिलेशन बना रहे. ठीक है. नाउ पुट वायर मैश. हमको अपने घर और दरवाजे और रोशनदान और खिड़कियों में क्या लगाने चाहिए, हमको लगाना चाहिए वायर मैश. इससे क्या होगा, हमारे फ्लाइज, मॉस्किटोज और बाकी इंसेक्ट्स हमारे घर के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो हमारा घर क्लीन रहेगा और हम भी सेफ रहेंगे. नाउ बिल्ड अ बाउंड्री वॉल टू स्टॉप स्ट्रे एनिमल फ्रॉम एंटरिंग द हाउस. हमें अपने बाउंड्री वॉल, घर के चारों तरफ फेंसिंग या बाउंड्री वॉल बनानी चाहिए जिससे स्ट्रे डॉग और एनिमल हमारे घर के अंदर एंटर ना कर पाएँ. नाउ क्लीन द बाथरूम एंड टॉयलेट एवरी डे टू कीप देम ड्राई. हमें हमेशा और रोज अपने घर को साफ सुथरा और सूखा रखना चाहिए, और लेट बाथ को, हमारे बाथरूम को हमेशा नीट क्लीन और ड्राई रखना चाहिए. ठीक है. नाउ वाइप द फ्लोर ऑफ द हाउस एवरी डे. हमें अपने घर के फ्लोरिंग को, फर्श को रोज साफ करना चाहिए, मॉपिंग करनी चाहिए. नाउ क्लीन द गोवेब्स रेगुलरली, कीप द डस्टबिन्स कवर्ड. हमें हमेशा अपने घर के कॉर्नर से और ऊपर से जाले साफ करने चाहिए, और हमें हमेशा डस्टबिन पे लिड लगाना चाहिए, उसे कवर करना चाहिए. नाउ डस्ट द फर्नीचर ऑफ द हाउस एवरी डे. जो भी हमारे घर में वुडन फर्नीचर है उसे हमें डस्ट फ्री रखना चाहिए, प्रॉपर उसको सूखे कपड़े से क्लीन करना चाहिए, डस्टिंग करनी चाहिए. इससे हमारे डस्टबिन का, इससे हमारे जो फर्नीचर है उसका लाइफ भी बढ़ जाएगा और क्लीनलीनेस भी मेंटेन रहेगी. ठीक है. नाउ सी देयर आर 2 टाइप ऑफ डस्टबिन. ओके. दिस डस्टबिन, ग्रीन डस्टबिन में हम क्या डालते हैं, ज़्यादातर किचन वेस्ट डालते हैं. ठीक है. जिससे हम इजीली इससे हम फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसमें हम अपने घर का बाकी वेस्ट मटेरियल डालते हैं. जैसे हमारा कोई ग्लास टूट गया, हमारा कुछ आइटम है लोहे का या स्टील का, ठीक है, कुछ हमारे प्लास्टिक बॉटल्स हैं, वो सारे हम इसमें डालते हैं, ब्लू कलर के डस्टबिन में. नाउ वी हैव वन मॉडल हेयर. ओके. क्या मॉडल है, वी शुड ऑल्सो कीप द एरिया अराउंड द हाउस क्लीन. हमें अपने घर के आसपास का जो एरिया है उसे भी हमें साफ रखना चाहिए. ठीक है. वी शुड नॉट डंप गार्बेज आउटसाइड फेंसिंग ऑफ आवर हाउस. वी शुड नॉट डंप गार्बेज, हमें अपने घर के बाहर गार्बेज नहीं फेंकना चाहिए. ठीक है. नाउ नेम 2 ओकेजन्स व्हेन यू डेकोरेट योर होम. सबसे ज़्यादा तो हम दिवाली में करते हैं. ठीक है. डेकोरेशन दिवाली में करते हैं, फिर हम करते हैं अपने वेडिंग में. ठीक है. ओके. नाउ द नेक्स्ट पेज. हु क्लीन्स योर हाउस. आपका घर कौन साफ करता है. जनरली हाउसमेड और मॉम करते हैं, वैसे हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपना घर क्लीन करें. राइट 2 वेज इन विच यू हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन. वो 2 तरीके जिससे आप अपने घर को क्लीन रख सकते हो. सो डू प्रॉपर डस्टिंग एंड मॉपिंग. दीज आर द 2 ways by which we keep our house clean. And where do throw the dry waste like pencils, shaving and waste paper in blue dustbin. Okay. ये हमारा ड्राई वेस्ट है. ओके. नाउ डेकोरेटिंग अ हाउस को हम कैसे डेकोरेट करते हैं, कैसे उसकी साज सजावट का हम ध्यान रखते हैं. नाउ पीपल लिविंग इन अ हाउस डेकोरेट इट बाय देयर चॉइस. जो लोग घरों में रहते हैं, जो लोग हैं, वो अपनी चॉइस से अपने घर को डेकोरेट करते हैं. ठीक है. सम पीपल इन द विलेज डेकोरेट द वॉल ऑफ देयर मड हाउस विद वेजिटेबल डाइज while some make रंगोली एट द एंट्रेंस. जो लोग गांव में हैं वो अपने घर की दीवारों पे क्या करते हैं, देयर मड हाउस, उनकी जो घरों की जो मट्टी की जो दीवार होती है उस पर वो वेजिटेबल डाई करते हैं. वेजिटेबल के जो कलर्स होते हैं ना, उनको यूज़ करते हैं डाई करने के लिए और रंग देने के लिए. ठीक है. while some make रंगोली एट एंट्रेंस. और कुछ ये होते हैं अपने घर के एंट्रेंस में रंगोली बनाते हैं. एक हमारा गेरू कलर होता है. ठीक है. उसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. नाउ सी दिस. इनकी वॉल जो है मड की है और इन्होंने डिफरेंट कलर से डिज़ाइन बनाया है. ठीक है. नाउ
ये हमारा टाउन और सिटी का घर है। पीपल इन सिटी यूज़ वेरियस ऑब्जेक्ट सच एज वॉल हैंगिंग, सबसे ज़्यादा वो वॉल हैंगिंग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर लैम्प्स इस्तेमाल करते हैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। पेंटिंग, एक्वेरियम, कारपेट्स, वो फ्लोरिंग के लिए कारपेट, वॉल पे वो पेंटिंग लगाते हैं, ठीक है। एंड एक्वेरियम, वो अपने घर में एक्वेरियम रखते हैं। नाउ फ्लावर वास एंड डेकोरेटिव प्लांट्स टू डेकोरेट देयर हाउस, वो कुछ फ्लावर वास रखते हैं अपने घर में, कुछ डेकोरेटिव इंडोर प्लांट्स रखते हैं जिससे उनका घर सुंदर लगे। ओके, now flowers, leaves, colors, earthen lamps and pots, streamers etc. are used to decorate house on special day. जब कुछ स्पेशल डेज आते हैं, जैसे बर्थडे आया, पूजा आया, या आपका एनिवर्सरी आती है, ठीक है, तो हम अपने घर को कुछ डिफरेंट, कुछ अच्छे स्पेशल तरीके से डेकोरेट करते हैं। तो वी यूज़ ऑल दीज थिंग्स। फ्लावर्स ऑर्डर करते हैं, हम दिए लाते हैं, हम कैंडल्स लाते हैं, कैंडल के बहुत डिफरेंट और अच्छे सुंदर स्टैंड्स आते हैं, हम वो लेकर आते हैं। हम पॉट्स यूज़ करते हैं, स्ट्रीमर्स यूज़ करते हैं, जिससे हमारा घर एक स्पेशल ओकेजन के लिए एक स्पेशल तरीके से डेकोरेट होता है, ठीक है। आर यूज टू डेकोरेट आवर हाउस ऑन स्पेशल ओकेजन, सम आर स्पेशली डेकोरेटेड ऑन स्पेशल ओकेजन। कुछ जो हमारे स्पेशल ओकेजन वो है आपके वेडिंग, फेस्टिवल, बर्थडेज एंड पूजाज। ये हमारे स्पेशल ओकेजन है जिसमें हम अपने घर को स्पेशल तरीके से डेकोरेट करते हैं। नाउ सी, पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया डेकोरेट देयर हाउस इन डिफरेंट वे। इंडिया के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट जो लोग हैं वो अपने अपने हिसाब से अपने घर को डेकोरेट करते हैं। सी, ये आपका अल्पाना है जो मेड विद अ राइस पेस्ट, ये राइस के पेस्ट से बनता है और ये कुछ दिन ऐसे ही रहता है, ठीक है। ये उससे हमने रंगोली बनाई है, राइस पेस्ट से, बंगाल में होता है ये हमारे राजस्थान में हम पपेट्स को हैंग करके अपना घर डेकोरेट करते हैं, ठीक है। फिर ये हमारा कोलम है जो हम अपने घर के बाहर छोटी सी रंगोली बनाते हैं, ये तमिलनाडु में होता है, केरल में होता है, ठीक है। और आपका नेक्स्ट इज, हम फूलों की रंगोली बनाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज आवर नेबरहुड, ओके, द एरिया सराउंडिंग आवर हाउस। वो हमारे घर को जो एरिया सराउंड, जो हमारे घर के जो चारों तरफ जो एरिया है, ठीक है, वो क्या है, दिस इज आवर नेबरहुड, ये हमारा नेबरहुड है। अब हमारे घर के आसपास क्या हो सकता है, हमारे घर के आसपास क्या हो सकता है, हमारे घर के पास हो सकता है स्कूल, हॉस्पिटल, फिर किंडरगार्टन स्कूल, फिर कोई सुपरमार्केट, फिर कुछ प्रोविज़न स्टोर, फिर कुछ हमारे फार्मेसी की शॉप्स, फिर हमारे वेजिटेबल वेंडर्स, फ्रूट वेंडर्स, ठीक है। ये सब हमारे घर के आसपास, हमारे घर के आसपास के लोकेशन में होता है, लाइक पोस्ट ऑफिस, बैंक, ओके। तो इन सब चीज़ों से हमारा क्या बनता है, नेबरहुड बनता है, ठीक है। इट इज़ यूजली हैज़ मैनी हाउसेज, अ स्कूल, पार्क, मार्केट, पोस्ट ऑफिस, बैंक, पुलिस स्टेशन एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों से हमारा क्या बन गया, नेबरहुड बन गया, ठीक है। हमारे पार्क भी होते हैं आसपास। नाउ यू हैव एवर सीन समवन आस्किंग योर एल्डर फॉर अ वे टू अ सर्टन प्लेस इन योर नेबरहुड। आपने कभी देखा है कि आपके किसी बड़े से कोई दूसरा किसी प्लेस के बारे में पूछ रहा हो, जो वहाँ का रास्ता जानना चाहता हो, तो then your elder may have guided them using words such as, तो जो आपका elder है उसको गाइड करेगा, उसको रास्ता समझाएगा by using such words like go straight, turn right, turn left, take a U-turn and so on। वो इन सब वर्ड्स से क्या करेगा, उसको रास्ता समझाएगा, जिससे उसके माइंड में एक रफ स्केच, एक रफ ड्राइंग बन जाएगी, ठीक है। Now they may even have made a rough drawing with the important landmarks। वो उसे कुछ उसके बीच में आने वाले कोई अच्छे लैंडमार्क के बारे में बताएगा, उसके माइंड में एक प्रॉपर एक पिक्चर बन जाएगी। लाइक वो बोलेगा गो स्ट्रेट till dead end, then turn left, then turn right, then make a U-turn, okay, there is one post office or a letter box, तो ऐसे एक लैंडमार्क बताएगा। there is one अमूल डेयरी, ठीक है, वो ऐसे आपको लैंडमार्क बता के आपके माइंड में एक पिक्चर ड्रॉ कर देगा, ठीक है, जिससे आप अपने डेस्टिनेशन पे इजीली उनको फॉलो करते हुए पहुंच जाएंगे। तो लाइक पोस्ट ऑफिस, डेयरी, पिक्चर, हॉल और फॉर रेफरेंस, ओके। सच अ रफ ड्राइंग इज कॉल्ड स्केच। जो आपके माइंड में ये सब वर्ड सुन के जो एक आपकी रफ ड्राइंग बनी है, दिस इज कॉल्ड स्केच, ओके। नाउ डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन मतलब दिशाएं। तो हमारे पास 4 मेन दिशाएं हैं, ठीक है। वी हैव 4 मेन डायरेक्शन। सबसे पहले जहाँ से हमारा सूरज उगता है, ईस्ट, ठीक है। फिर ठीक उसके पीछे हमारा क्या होता है, वेस्ट, ओके। फिर जो हमारा राइट होता है वो हमारा साउथ डायरेक्शन, और जो हमारा लेफ्ट होता है वो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, ओके। सो हाउ वी
recognize our direction. See, we locate place by a help of direction. हम किसी place के location को, ठीक है, कैसे जज करेंगे लोकेशन को? डायरेक्शन की हेल्प से. ओके, देयर आर 4 मेन डायरेक्शन. हमारे पास क्या है? 4 मेन डायरेक्शन है. ठीक, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट. ओके, द डायरेक्शन इन विच द सन राइजेज इज द ईस्ट. ओके, वो डायरेक्शन जहाँ से सूरज राइज करता है, सूरज उगता है, दैट इज कॉल्ड ईस्ट. ओके, सन राइजेज the east, and the direction in which it sets is the west. वो डायरेक्शन में जहाँ सूरज छुपता है, सेट होता है, उसे हम वेस्ट कहते हैं. ठीक है. नाउ दिस इज पूरब एंड दिस इज पश्चिम. इफ यू स्टैंड फेसिंग द सन इन द मॉर्निंग, ध्यान से देखिए, इफ यू स्टैंड फेसिंग द सन इन द मॉर्निंग, जब आप सुबह सन को फेस करोगे, ठीक है, यू फाइंड ईस्ट, आपको क्या पता चलेगा? दिस इज ईस्ट. अगर यहाँ से हमारा सूरज राइज हो रहा है और हमने उसकी तरफ अपना फेस किया हुआ है, तो दिस इज द डायरेक्शन इज ईस्ट. ठीक है, और ठीक हमारे पीछे क्या हो जाएगा? वेस्ट. ओके, नाउ ईस्ट, यू फाइंड ईस्ट इन द फ्रंट ऑफ यू, वेस्ट इज बिहाइंड यू. जो वेस्ट है वो ठीक हमारे पीछे हो जाएगा. ओके, एंड साउथ इज योर राइट. जो हमारा सीधे हाथ पे होगा वो हमारा साउथ होगा, और जो हमारे उल्टे हाथ पे होगा वो हमारा नॉर्थ होगा. ठीक है. नाउ अ मैप. नाउ इट टर्न टू अंडरस्टैंड अ मैप. ठीक है. See, a map is a drawing that show a flat picture of an area on paper. Map क्या है? एक drawing है, एक flat paper के ऊपर एक flat picture है किसी एरिया की. ठीक है. Shown here are map of a locality and of India. यहाँ पे 2 मैप हैं. इसमें क्या है? एक लोकेलिटी का मैप दिया हुआ है, घंटाघर का, और ये पूरे इंडिया का मैप है. ठीक है. इंडिया का देखो, ये सारे हमारे डिफरेंट स्टेट्स हैं. अगर हम यहाँ की कोई एक लोकेलिटी ले लें उत्तर प्रदेश की, तो वो क्या हो जाएगा? और इनलार्ज हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश की कुछ मेन चीज़ों के बारे में वो उसमें डिस्क्रिप्शन में अपने आप शो करेगा. ठीक है. नाउ लोकेलिटी मैप और इंडिया मैप. द मैप ऑफ अ बिल्डिंग, अ हाउस और अ रूम इज कॉल्ड प्लान. किसी बिल्डिंग का मैप हो, किसी रूम का या किसी हाउस का, उसे हम प्लान बोलते हैं. ओके, फॉलोइंग इज अ तन्वीज क्लासरूम एंड इट्स प्लान. ये तन्वी का क्लासरूम है और ये उसका नीचे देखो प्लान बना हुआ है. सी, अ क्लासरूम हैज व्हाट? 3 windows, 1 blackboard, ठीक है, 1 chair for teacher and long desks for ma'am. Okay, there is 1 cupboard, there is a door, there is some sitting place for children. Okay, this is a map. Okay, this is Tanvi's classroom and here it's map. Okay, see map में कैसा दिख रहा है आपको? You can see here, this is the blackboard, this is the जो student अपने board बनाते हैं, ठीक है, display board. Okay, there are 3 window, there is door, there is cupboard, दिस इज सिटिंग एरिया. ओके, तो जो मैप है वो हमारा कुछ ऊपर से देखने में हमको ऐसे लगेगा. दिस इज अ एरियल व्यू. अगर हम ऊपर से हवा में देखेंगे टॉप से, तो हमारा जो तन्वी का क्लासरूम है वो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा. सी, अ प्लान ऑफ अ क्लासरूम शोन अबव रिप्रेजेंट द व्यू एज सीन फ्रॉम इट्स टॉप. ये जो हमारा ये जो व्यू है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे ये दिख रहा है जैसे कि हम ऊपर से देख रहे हैं, ऊंचाई से देख रहे हैं. ठीक है. एंड इट्स कॉल्ड एरियल व्यू. इसे हम कौन सा व्यू कहते हैं? एरियल व्यू, क्योंकि हम हवा में ऊपर टॉप से देख रहे हैं. ठीक है. और अ बर्ड आई व्यू, और इसे हम कह सकते हैं बर्ड आई व्यू. सो दिस इज तन्वी's classroom. नाउ द नेक्स्ट पेज. सी, वी हैव एक्सरसाइज हेयर. ओके, एंड देयर इज एन OMR sheet. वी हैव टू मेक द करेक्ट आंसर होल ब्लैक, करेक्ट ऑप्शन होल ब्लैक. ठीक है. नाउ फर्स्ट इज darken the correct option in the OMR sheet. If you move right, अगर आप सीधे जाते हैं राइट, ठीक है, राइट साइड में, यू आर मूविंग टूवर्ड्स द डायरेक्शन स्टैंडिंग फेसिंग द ईस्ट. अगर आपने ईस्ट की तरफ मूव किया हुआ है और आप अपने राइट की तरफ जा रहे हो, देन यू विल बी इन साउथ डायरेक्शन. ओके. नाउ इफ यू मूव लेफ्ट, अगर आप लेफ्ट में जाते हो एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स द डायरेक्शन, आप कौन से डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हो? अगर आपका फेस कहाँ है? ईस्ट की तरफ है, देन दिस इज नॉर्थ. ओके, लेफ्ट में नॉर्थ है. नाउ इफ यू गो स्ट्रेट, यू आर मूविंग टूवर्ड्स द डायरेक्शन स्टैंडिंग फेसिंग ईस्ट. अगर आपका फेस ईस्ट की तरफ है और आप सीधे ही जा रहे हो, तो दिस इज
east. Okay, now if you take a U-turn, you will start moving towards the direction standing facing east. आपने सीधे U-turn ले लिया, this is your west, या आप पश्चिम दिशा में जाने लग गए. Okay, now we have fill in the blanks here. These are the given words. You have to fill the correct word in the correct blank. Okay, a flat is a house. A flat is a pakka house. Okay, so you need to write here pakka. Okay, now houseboat can be seen in Kashmir and in Kerala. Kerala में भी backwater होता है, उसमें भी boats होती हैं और उसमें भी घर बने होते हैं. Okay, and live in igloo. Igloo में कौन रहते हैं? Inuits. Inuits. Okay, इंडिजिनस पीपल होते हैं ये. ओके, एंड अ हाउस शुड बी अ व्हाट? नीट एंड क्लीन. नीट एंड क्लीन. ओके, नाउ यू हैव टू राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स. अ बंगलो इज अ वेरी बिग हाउस. यस, ये बहुत बड़ा होता है अंदर से भी और इसके चारों तरफ भी खूब लैंड होती है, तो दिस इज ट्रू. नाउ अ टेंट इज अ पक्का हाउस. नो, फॉल्स. Okay, now a stilt house is built on board. No, false. Okay, a flat is a part of a multi-story building. True. ठीक है, now this is our chapter about houses and neighborhood. I hope you all are understood. If you not, you may go through the chapter again, watch the video again till you get what? Understood. Okay, bye bye.